Assalamu alaikum. Students, today we will going to start a new topic, and the name of this topic is Central and Southern India. Students, as we know that we are studying all the Mughal period, and gradually as we saw that gradually the Mughal dynasty going to its end, and now this is almost the last chapter regarding this topic. Okay, history of Central and Southern India is not so clear. एंड आपको पता है कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि गुजरी हुई पास्ट इवेंट्स के बारे में सारा उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है. समटाइम्स कुछ इंफॉर्मेशंस मिस हो जाती हैं, उनके बारे में प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया जाता प्रीवियस टाइम्स में. सो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ एक है इशू. सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है इट्स नॉट सो कंप्लीट, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी भी है. और इसके स्टार्ट में ये है कि सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया में देर आर मैनी सब किंगडम्स एंड किंगडम्स, क्योंकि आपको पता है कि मुग़ल एम्पायर वाज गोइंग टू इट्स डिक्लाइन. तो बहुत सी बाहर की जो पावर्स थी वो इंडिया आकर तो इंक्रोचमेंट्स हो रही थी और काफ़ी फाइटिंग्स चल रही थी, और हर किंगडम चाह रही थी कि मैं एम्पावरमेंट ले लूँ और जिसका मतलब ज़ोर चल रहा है वो एरिया पे कैप्चर कर ले. सो इन सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया इन 15th सेंचुरी, मैंने एक छोटा सा बेटा आपके इजीनेस के लिए आई मेड दिस फ्लो चार्ट फॉर यू. इस तरह से कि यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट. वैसे ये रिटन फॉर्म में भी आई विल शो दिस ऑल मटेरियल इन रिटन फॉर्म एज वेल, but for your easiness you can learn from it easily. In 15th century in central and southern India there were basically two kingdoms. First one relates to Muslims, that is the Bahmani kingdom. This is basically a Muslim kingdom, and the next one is the Vijayanagar kingdom, and this belongs to Indian Empire. But the Bahmani kingdom, which belongs to Muslim empire, in 16th century, the Muslim empire is broken down into 5 other smaller states as Bijapur, Bidar, Golconda, Ahmednagar and Berar. As you know, the Mughal empire, Mughal dynasty was going to its decline, और वो अपने बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए थे. And they lose their focus towards the country matters, और वो बिज़ी रहते थे अपने ही डेली एक्टिविटीज़ में, इंजॉयमेंट्स में, अपनी पार्टीज़ और जो भी उनके वहाँ पुराना चल रहा होता था उनके पैलेसेस के अंदर. तो उन्होंने लूज़ की अपनी एम्पावरमेंट, और इट डिवाइड्स इनटू 5 other states. And the Vijayanagar kingdom, which relates to Hindu kingdom, it in 17th century it was empowered by a group of Marathas. We will discuss Marathas in later question. Okay, this is the whole brief history regarding southern and central India, in which the total there are main 2 kingdoms, the Bahmani kingdom and the Vijayanagar kingdom. And the Bahmani kingdom, which belongs to Muslim kingdom, further it divides into 5 states: Bijapur, Bidar, Golconda, Ahmednagar and Berar. And the Vijayanagar, which is a Indian kingdom, was empowered by Marathas later on in 17th century. Okay, move on to the next slide. Okay, this is the question. Give a brief account on the history of central and southern India. And the answer of this question I have highlighted in this book, page number 96. This is your syllabus book, textbook, history textbook. And these are the highlighted lines. Now I am going to read these lines for your easiness. The history of central and southern India and the times covered by this book is very complicated, and there is a great deal we do not know yet. ये जो मैंने आपको भी बता दिया कि हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है. We do know that there were many kingdoms, some big and powerful and some quite small. बहुत सी kingdoms थी इसमें, कुछ बड़ी कुछ छोटी, and they were constantly fighting. वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे ताकि जिसका भी पावर ज़्यादा हो वो दूसरे एरिया पे कैप्चर कर ले.
और यही एक बेटा बेसिक रीज़न थी कि इस एरिया में जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसके वीक होने की बेसिक रीज़न भी यही थी कि अगर आपस में कंट्री में आपस में यूनिटी ना हो तो बाहर के लोग जो हैं वो उसको कैप्चर कर इजीली कैप्चर कर लेते हैं। चूँकि ये किंगडम्स आपस में ही एक दूसरे के साथ फाइटिंग में और वॉर्स में बिजी थी, तो फिर बाहर के जो लोग थे जैसे कि ब्रिटिश थे उन्होंने आकर इजीली इसको कवर किया, इसको कैप्चर किया। Okay, the large ones sometimes broke up into separate states, which were there was a weak ruler and powerful nobles seized their own countries. States swallowed up. Swallowed up means to capture. यहाँ पर मैंने कुछ words के meanings भी आपको दे दिए हैं ताकि आप easily यहाँ से note down कर लें. Swallowed up means to capture other kingdoms. Thus, states swallowed up neighbors only to be defeated themselves by others. Other period deals largely with the struggle between the various kingdoms to become the leading power. Leading power means to become a powerful country in the southern half of the continent. Students, you will just add up these highlighted lines in your answer. In the next paragraph, ये जो भी मैंने आपको की डिस्क्राइब की है वो सारा की फॉर्म में है. दिस इज़ इन द टेक्स्ट फॉर्म कि वही 15th सेंचुरी में 2 किंगडम्स थी, बहमानी एंड इंडियन की जो थी वो थी विजयनगर, और बहमानी किंगडम वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 स्टेट्स एंड द विजयनगर वाज फर्दर कैप्चर्ड बाय मराठास. ओके, I think I should read it. By the end of the 15th century, the two main states were the Muslim kingdoms of Bahmani, which early in the 16th century broke up into separate states of Bijapur, Bidar, Birar, Golconda and Ahmednagar, and the Hindu empire of Vijayanagar. ये तो 2 states हो गई जिनके बारे में बात हो रही थी, और जो बहमानी है उसकी further 5 states की नाम आ गए. In the 17th century, the Hindu Marathas suddenly appeared to be the most powerful group of them all. ये एक नया ग्रुप है मराठास का. ये नेक्स्ट क्वेश्चन विल रिलेट टू दिस मराठास. उसमें आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे कि हाउ फ्रॉम वेयर दीज मराठास कम फ्रॉम. एक्चुअली दे ये जो मराठास हैं दे आर वेरी पावरफुल नेशन, और ये पहाड़ों में माउंटेन्स में अपने फोर्ट्रेसेस बना के वहाँ रहते थे, और इसी वजह से चूँकि बहुत हार्श कंडीशंस में रहते थे, सो दे आर वेरी पावरफुल, और इसी वजह से इन्होंने एम्पावर भी किया, इन्होंने कैप्चर किया बहुत से एरियाज़ को. द मुगल्स फेल्ड टू डिफीट दैम. अब आप देखें कि जो मुगल्स थे जो कि अपनी सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत कर रहे थे, लेकिन मराठास ने जब आकर इनके साथ फाइट की तो ये मराठास को ओवरकम नहीं कर सके. इनके मराठास सीम्स टू बी मोर पावरफुल दैन मुगल्स, एंड द ब्रिटिश हैड टू फाइट 4 बिटर वॉर्स. और जो ब्रिटिश थे, जो आपको पता है कि ब्रिटिश भी बाहर से आए थे सब कॉन्टिनेंट पर करने के लिए, अपना फुल कंट्रोल करने के लिए. तो ब्रिटिश ने इनके साथ 4 वॉर्स की थी, जैसे कि पिलासी की वॉर थी और एक बॉक्सेस वॉर थी आई थिंक, तो ताकि इनको कम्प्लीटली कॉन्कर कर सकें. एंड फाइनली ब्रिटिश कॉन्कर्ड द मराठास बिकॉज ब्रिटिश हैज़ मोर रिसोर्सेज. उनकी ज़्यादा अच्छी आर्मी और उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने को एटलीस्ट उनको एट द एंड उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया. Okay, ji, this is your full question of this answer. Sorry, this is the full answer of your question. Give a brief account on the history of central and southern India. Okay, the next question of this topic is, who were Marathas, where they came from, and how they captured Mughal Empire. Marathas were a much more serious and long-lasting threat to Muslim kingdoms of the subcontinent. अब बता रहे हैं आपको कि ये बहुत ज़्यादा जो सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम किंगडम्स थी सब कॉन्टिनेंट की, जो कि मुग़ल एम्पायर के पास मुग़ल डायनेस्टी यानी कि पूरी थी, उसको इन मराठास ने आकर कैप्चर किया, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन गए थे क्योंकि किसी भी तरह से उनसे डिफीट नहीं किए जा रहे थे. नो वन नोज क्वाइट where they came from, but they appeared in the early 17th century in the western Ghats. यानी कि घाट्स एक ऐसा एरिया जैसे कि माउंटेनियस एरियाज़ हैं, वहाँ पर उनके गार भी होते थे और डिचेस वगैरह जहाँ पे ये रहते थे गहरी खाइयों में. Were protected by mountains, rivers and sea,
They lived in harsh conditions of poor soil and little rainfall and so developed into very tough people. यानी कि इनकी जो लिविंग कंडीशंस थी, इनके पास ना प्रॉपर पानी है, ना सॉइल है फर्टाइल, और बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस में रहने के आदी थे, भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते थे. सो दे आर वेरी टफ पीपल. दे बिल्ट ग्रेट फोर्ट्रेसेस इन द माउंटेन्स. उन्होंने पहाड़ों में अपने किले बना लिए हुए थे, विच are almost impossible to capture, and from these they made raids into the surrounding territories. चूँकि वहाँ छुप के रहते थे, इसलिए उनको हर तरफ से कैप्चर करना बहुत टफ था, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उन रास्ते होते हैं माउंटेन्स में, आपको पता है गार बने हुए होते हैं, और वहाँ से, और फिर वो अचानक वहाँ से निकल भी आते थे. और रेड्स मीन्स अचानक हमला करते थे, छापे डालते थे लोगों के ऊपर. ये मुग़ल एम्पायर पे अचानक से ये अपना शो करते थे पावर. देयर फर्स्ट ग्रेट लीडर वॉज, यहाँ पे मैंने बेटा वॉज एक वर्ड ऐड किया है, शाहजी भोंसले. दिस इज़ द नेम ऑफ दिस देयर फर्स्ट ग्रेट लीडर. नेक्स्ट अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे, नेक्स्ट कॉलम पे. देयर ग्रेटेस्ट लीडर वॉज शिवाजी, who in 1699, I think 1699 forced the Sultan of Bijapur to surrender. यानी कि ये मराठास जो थे, ये फुल चाहते थे, इनकी फुल ये थी एक प्लानिंग कि ये मुग़ल जो एम्परर्स हैं उन पर कब्ज़ा करें. औरंगज़ेब जो थे, उन्होंने ट्राई किया कि इनको डिफ़ीट करें, बट ही कुड नॉट डिफ़ीट द मराठास. उसके बाद ये डिटेल हिस्ट्री है कि कहाँ कहाँ वॉर्स हुई, इसको ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट लास्ट 3 to 4 लाइन्स. द मराठास वेंट ऑन टू कॉन्कर बीजापुर, गोलकोंडा. देखिए अब आप ये देखिए कितने सारे एरियाज़ ये मराठास जो हैं वो कैप्चर करते चले जा रहे हैं, कॉन्कर कर रहे हैं. बीजापुर, गोलकोंडा, कर्नाटका, एंड शिवाजी वॉज क्राउन रूलर ऑफ द मराठास. यानी कि इसको ताज भी फिर पहनाया गया, क्योंकि इतने सारे एरियाज़ कवर किए और अपनी जो थी वो वहाँ पे रूल जो है वो स्टार्ट किया. आफ्टर शिवाजीज डेथ इन 1680, Aurangzeb began to attack again, but neither side was able to win. Soon after Aurangzeb's death, यानी कि औरंगज़ेब इनको डिफीट करने में कामयाब नहीं हो सका, और उनकी डेथ के बाद मराठास वर कंप्लीट मास्टर्स ऑफ द डेक्कन एंड इन्वेडेड द हार्टलैंड्स ऑफ द मुग़ल एम्पायर. यानी कि मुग़ल एम्पायर के जो बहुत ही इनके मार्वलस एरियाज़ थे और ऐसी बिल्डिंग्स थी इनकी, बहुत बड़े बड़े कासल्स थे, उन सब को मराठास ने कैप्चर किया. So this is all about Marathas, how Marathas empowered the Mughal dynasty. लेकिन ये है कि मराठास को बाद में ब्रिटिश ने आकर उनके साथ काफ़ी जंगें लड़ी और वॉर्स की, और उसके बाद मराठास को इवेंचुअली उन्होंने डिफीट किया ब्रिटिश ने. Okay, thank you students. Today these are the 2 questions. You have to write down both of these 2 questions on your notebook, and you have to draw the flow diagram which I made for you. By the help of this diagram, you can easily learn a brief history of central and southern India. Okay, thank you. Dear students, you have to read full chapter. There are 2 topics, Bahmani kingdom and the Vijayanagar kingdom. No question was made from these 2 topics, but you have to read all the chapter, because our objective is from all chapter, as you know. And I gave the difficult words meanings. If you have some difficulty to read, you can see these words meanings as well. In Bahmani kingdom and Vijayanagar kingdom, there is just a brief touch of how they rule their kingdom, and there are just some important events, how they rule the kingdom, and what are the different eras in which different years in which they fought with other kingdoms as well. Okay, and students, I think I gave the wrong, I read wrongly.
I could not see the exact figure. This is 1659. I think it's not 99, 59. You please check from your textbook. Thank you.